भारत को या एज ए भारतीय आई डोंट नीड जीसस, क्योंकि उनकी मैसेज इज मच मोर शैलो, खोखला है उनकी मैसेज, इज खोखला कंपेयर टू माय वेदांता, कंपेयर टू माय फिलॉसफी, माय सनातनी फिलॉसफी, माय सिखी फिलॉसफी. So compared to that, so I can't call them fools. They are just emotional, sentimental believers, blind believers. So these people really think that you are going to hell because you are not believing in Jesus Christ, and they want to save you. So ये तो एक उनका बिलीफ सिस्टम ही हो गया ना, एक बुक में लिखा है तो आप उसको बिलीव कर रहे हो बस. Yes, true. There is no evidence to this. किसी ने देखा नहीं है, हेवन को देखा नहीं है, हेल में किसी ने देखा, हेल को देखा नहीं है. There is no evidence to this. There is no empirical evidence, physical evidence, कुछ भी नहीं है इसके. कुछ भी नहीं. एक बुक में लिखा गया है, बस उसको blind believe करो. As a Christian, you cannot question anything about Christianity. तो ये सिखाया जाता है. जी. आजकल जैसे सिख लोग when they convert, they don't remove their पगड़ी. Yes. Even do not change their name as well. Exactly. They assimilate. Christianity assimilates. It syncretizes. Syncretistic बन जाता है. So this theory in Christianity की जितने जल्दी लोग मतलब दुनिया सारा क्रिश्चियनाइज हो जाए, उतनी जल्दी यीशु मसीह वापस आएंगे. ये जो सेकंड कमिंग के बारे में आपने सुना है ना, when he will take everybody to heaven, all mankind to heaven, है ना? मतलब जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया है. तो one of the main purposes of the Christian, one of the main purposes नहीं, बस एक ही main purpose of Christianity, of being a Christian is for Jesus to come back again and हम सब heaven चले जाएं. That's the only goal of a Christian life. जी जी. तो ऐसे गोल के साथ they want Jesus to come back soon. So Jesus अगर जल्दी वापस आना है तो सभी को कन्वर्ट करना है. It's a divine book, right? तो यहाँ पे theologian who is promoting Christian religion and who is teaching me to defend Christianity, वो उसने लिखा कि Bible has errors. तो यहीं से शुरू हुआ मेरा questioning का जर्नी. दी डायलॉग टाइम ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਵਿਊਅਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਕਨਵਰਜਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਬਚਾ ਲਿਆ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਡਿਵਿਨਿਟੀ US ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਐਸਟਰ ਧਨਰਾਜ ਜੀ. ਐਸਟਰ ਧਨਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ स्वागत है. नमस्ते अमरिंदर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए जी. व्यूअर्स, क्योंकि ਐਸਟਰ ਧਨਰਾਜ ਜੀ ਤੇਲਗੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਐਂਟ ਨੇ,
ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਨਾ ਫਲੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ नहीं पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ईस्टर धनराज जी, जो मैं आपसे पहली बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी अपब्रिंगिंग ईसाइयत में ही हुई है, क्रिश्चियनिटी में ही हुई है, अगर आप कुछ ब्रीफ्स अपनी फैमिली में बताएंगे कि कैसे आपकी फैमिली की कन्वर्जन हुई, फिर हम मेन क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सो अमरिंदर जी, मैं करीब 12-13 साल की थी जब मेरे मदर फादर ने ईसाई धर्म को अपनाया। माता पिता मेरे पूजा पाठ बहुत करते थे। पिताजी गायत्री उपासक थे और माँ बहुत ही कंजर्वेटिव गृहिणी थी। वे भी पूजा पाठ बहुत करती थी। तो एक हिंदू सुमंगली जिसको बोलते हैं, उनको सजना धजना बहुत अच्छा लगता था, मतलब सिंदूर, बिंदी, हैना, कांच के चूड़ियां, बालों में गजरा, तो हमेशा मतलब एकदम एक हिंदू नारी की तरह तैयार होती थी। और हम बच्चों ने उन्हें हमेशा मतलब शोला श्रृंगार में ही देखा है। और पिताजी की एक अच्छी करियर थी, पहले रेलवेज में काम करते थे, उसको छोड़ के एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पर लग गए और विशाखापट्टनम में डॉक लेबर बोर्ड में उन्होंने काम किया था काफी दिन। फिर उसे भी छोड़ के एक प्राइवेट जॉब करनी शुरू कर दी। काफी अच्छी पोजीशन थी, अपर मिडिल क्लास स्टेटस था हमारा, पढ़ा लिखा हंसता खेलता परिवार था, बहुत ही खुशहाल जिंदगी थी, ये कहा जा सकता है। हम 5 बच्चे थे और घर में कुत्ता भी पालते थे, तो इट वाज अ वेरी हैप्पी एटमॉस्फेयर घर में। जी। तो ऐसे में एक छोटी सी मुसीबत आई, जैसे हर किसी के जीवन में आती है ना, कोई बड़ी सी या कोई बहुत ही अनहोनी सी या सीरियस सी बात नहीं थी। मदर को एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत पड़ी और तभी मेरे पिताजी की जॉब भी छूट गई थी। जी। तो हमारे बगल में एक तमिल क्रिश्चियन रहा करते थे, अकेले रहते थे, फैमिली उनकी तमिलनाडु में थी और वो टेल्को में इंजीनियर के तौर पे काम करते थे। अब हमारे मम्मी जी की एक आदत थी, दूसरों को खाना खिलाने में उनको बहुत ही खुशी मिलती थी। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि बगल में एक बैचलर सा कोई रह रहे हैं, तो उन्होंने सोच लिया कि इनको अच्छी खाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम बच्चों के हाथ उनके घर खाना भिजवाते थे। तो ऐसा करके उन पड़ोस के साथ हमारी दोस्ती हो गई और उनको कहीं से भनक हो गई कि हमारे घर की सिचुएशन कुछ डिस्टर्ब्ड है। तो ऐसे में उन्होंने धीरे धीरे से उनकी इवेंजलिज्म शुरू कर दी। तो पहले घर में पड़ोसी आए, फिर उनका बाइबल आया, फिर पूरी तरह हमारी फैमिली मतलब क्रिश्चियनिटी की तरफ चलती गई। मतलब एस्तर जी, आप जो इवेंजलिज्म वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब अगर हिंदी में निकालेंगे तो प्रचार। यस, इवेंजलिज्म मतलब प्रचार। और इवेंजलिस्ट वो होता है जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता है। जी। कोई भी, मतलब वो आपके दोस्त भी हो सकता है, मैं इसके बारे में बाद में बोलूंगी आपको तरह तरह के इवेंजलिज्म कैसे होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम सब भाई बहन एक एक करके कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट 25 years मैं एक अंध भक्त बन गई थी क्रिश्चियनिटी की। और इसी बीच शादी हुई, बेटी हुई, और शादी के बाद मैं और कट्टर ईसाई बन गई। जी। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ अमरिंदर जी कि मुसीबतें हर एक
के जिंदगी में आती है, चाहे वो अपर बिल्कुल। क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच, पुअर, इलिटरेट, लिटरेट, चाहे कैसे भी किसी भी क्लास की फैमिली हो, सबके घरों में आती है। पर ऐसा क्यों है कि हर कोई कन्वर्ट नहीं होता है, और ऐसा क्यों है कि हर मुसीबत के टाइम पे कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, जब मैं छोटी थी, मतलब मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे भाई बहन के हेल्थ में बहुत सीरियस इश्यू हो गई थी। तो माय पेरेंट्स वर हिंदूज तब, तो यूं कहा जा सकता है कि दोनों, मेरे बड़ा भाई और बड़ी बहन, दोनों नियर डेथ सिचुएशन, नियर डेथ, समझते हैं, नियर डेथ सिचुएशन हो गया था उनका। तब तो मेरे पेरेंट्स कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो अंतर क्या है, आप क्या समझते हैं इसका अंतर क्या है? जब मदर की एक छोटी सी सर्जरी, वेरी नॉर्मल सर्जरी, जो आई थिंक अबाउट 80% ऑफ द विमेन अंडरगो दैट काइंड ऑफ सर्जरी, उनको जरूरत पड़ी थी, एंड देन वी कन्वर्टेड, that is actually the cause of our conversion, that became the cause of our conversion। जबकि इतने सीरियस इश्यूज से उससे पहले, कई साल पहले मेरे पेरेंट्स गुजर चुके थे, बट तब तो कन्वर्ट नहीं हुए थे। आई थिंक सो तब कुछ तमिल नहीं रह रहा था आपके घर के नजदीक, कोई क्रिश्चियन नहीं रह रहा था। जी, सॉरी, क्रिश्चियन तमिल, यस यस, मेरे हमारे बगल में कोई क्रिश्चियन नहीं था, और उसके ब्रेन वॉश नहीं था हमारे फैमिली में, बस यही अंतर है। तो फिर आपकी उसके बाद सारी फैमिली की अपब्रिंगिंग क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग ही हुई है। तो आपने फिर जो यूएस में गए और वहां पे जाके आप अपने जो मास्टर्स की, थोड़ा उसके बारे में व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दे कि आपने जो डिविनिटी में मास्टर्स की है। और करेक्ट, तो आप कह रहे हैं कि मेरी अपब्रिंगिंग क्रिश्चियन की तरह हुई है, तो मैं ये कह दूं कि हमारे घर में बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी मेरे पेरेंट्स की। मतलब ऐसे नहीं कि कंजर्वेटिव, कि माँ बाप के हैसियत से हम जो बात कह रहे हैं वही तुम बच्चों को करना है, ऐसा कभी नहीं था। तो उन्होंने हमारे मजहब चुनने का चॉइस हम पे छोड़ दिया था। बट घर में माहौल ऐसा था कि हर हफ्ते पास्टर घर पे आते थे जी, और प्रेयर मीटिंग एक कराते थे, और मेरे पेरेंट्स संडे को चर्च में जाते थे। मतलब ये सब इवन बिफोर दे गॉट बैप्टाइज्ड। तो चर्चेस में ऐसा होता है कि फैमिली को दिखाते हैं कि वो प्रेशर में नहीं लेके आ रहे हैं, देयर इज नो प्रेशर करके दिखाते हैं, बट मेंटली देयर इज अ काइंड ऑफ कोवर्शन। कहते हैं कि आपको चर्च में आना पड़ेगा, चर्च में आएंगे तो यू नो गॉड आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, फिर उसका रिप्लाई, जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा, फिर आपके सिचुएशन टल जाएगा। तो ऐसे करके देयर इज अ काइंड ऑफ मेंटल कोवर्शन। तो एक बंदा जो इतने मुसीबत में है और उम्मीद करता है कि किसी ना किसी तरह से उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए, या मिराक्युलसली उसका प्रॉब्लम बस ऐसे छूमंतर हो जाए, तो इस बात की उम्मीद जो बंदा रख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो पास्टर के बातों में आएगा ही, है ना। और तब खासकर जब और कोई उसके साथ खड़े नहीं है, जैसे कि रिश्तेदार या दोस्त, ये सब जब दूर चले जाते हैं, तो पास्टर तो एडवांटेज लेगा ही। उसका काम ही वो है, उसका ट्रेनिंग ही वो है जी, कि एडवांटेज कैसे लिया जाए। तो इस तरह का माहौल घर पे था। तो हम भाई बहन ने एक एक करके, हम भी चर्च जाते थे, और हर फ्राइडे को हमारे घर में प्रेयर मीटिंग होती थी, उसमें बैठते थे हम। तो देयर वाज अ काइंड ऑफ मेंटल कोवर्शन। और हम बड़े हो रहे थे बच्चे, तो वी वर थिंकिंग कि मदर फादर इसमें अगर खुश है, तो मदर फादर ने ऐसी डिसीजन ली है, तो शायद इसमें कुछ अच्छाई होगी, है ना। मतलब एज चिल्ड्रन इन मिडिल क्लास सेटअप, जो अपने पेरेंट्स को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही लव करते हैं, तो पेरेंट्स के डिसीजन से वो नाखुश कैसे हो सकते हैं। So we also followed our parents in their spiritual path.
तो ऐसे हम कन्वर्ट हुए। और आपने पूछा कि मेरे यूएस पे मतलब कैसा मेरा एजुकेशन क्या हुआ, तो शादी के 10 साल बाद मैं मेरे हस्बैंड और बेटी के साथ में यूएस इमिग्रेट हो गई। तो मुझे पहले से ही किसी ना किसी एक फील्ड में पीएचडी करने का बहुत शौक था। तो यूएस जाने से पहले मैं यहाँ पे ही मास्टर्स हो गई थी मेरी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो यूएस जाने के बाद बिफोर आई एनरोल्ड इन पीएचडी आई नीडेड अ मास्टर्स डिग्री। तो इसके लिए मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तो मास्टर्स इन एजुकेशन लीडरशिप, मुझे एजुकेशन फील्ड का बहुत वो था, इंटरेस्ट था, क्योंकि यूएस जाने से पहले मैं यहाँ पे एक स्कूल चलाती थी इंडिया में। तो मुझे वहां पे जाके यूएस में एक एजुकेशन लीडरशिप पे एक मास्टर्स करना था, क्योंकि मुझे एजुकेशन सिस्टम में जाना था। विद दैट डिग्री आई कैन बिकम अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल इन द यूएस। तो वो एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था डिविनिटी, क्रिश्चियन स्टडीज, क्रिश्चियनिटी के बारे में और गहराई से जानने का मौका। तो see I was a converted Christian from a Hindu to a Christian, right? तो बचपन में जो कुछ भी सिखाया जाता है चर्च में, मैं हमेशा सोचती थी कि वो फाउंडेशन नहीं है मुझ में। तो I wanted to go to do Christian studies to get myself equipped with proper knowledge of Christianity. तो क्रिश्चियन स्टडीज का एक था ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था एजुकेशन लीडरशिप। तो मैंने चुना कि मैं ऐसे सोचने लगी, मेरे सोचने का तरीका ऐसा था कि मैं सोची आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी, डू हायर स्टडीज। तो इस वक्त गॉड ने मुझे अमेरिका इसलिए भेजे, गॉड इसलिए मुझे भेजे कि मैं उनकी और सेवा कर सकूं। तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई शुड डू क्रिश्चियन स्टडीज। और मैं अपने आप तय कर ली कि गॉड इज शोइंग मी दिस डायरेक्शन दैट आई शुड डू क्रिश्चियन स्टडीज। और एजुकेशन लीडरशिप मास्टर्स को मैंने एप्लीकेशन उसको फेंक दिया और आई एनरोल्ड इन अ क्रिश्चियन स्टडीज यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का नाम है सेमिनरी बोलते हैं। सो वहां पे मैंने मास्टर ऑफ डिविनिटी कोर्स किया हुआ है। तो एक ऑप्शन था पैसे बनाने का ऑप्शन, पैसा बनाने की पढ़ाई, दूसरी थी लुटाने की। तो मैं सोची गॉड इज शोइंग मी द डायरेक्शन, तो चाहे मतलब पैसा लुटाए तो क्या हुआ, वो फिर भी मैं गॉड के लिए कर रही हूँ। तो मैं चुनी लुटाने की पढ़ाई, विच इज मास्टर ऑफ डिविनिटी। धर्म का रास्ता अपनाया आपने? धर्म का रास्ता ये कहना चाहेंगे आप? मींस की रिलीजियस पाथ, रिलीजियस स्टडीज, यस। सो आई चोज दैट फील्ड। तो मैं उसमें हो गई। आई डिड माय मास्टर्स। मुझे पास्टर बनना था। पास्टर बन के वापस आके इंडिया में धर्म प्रचार करना था। मैं धर्म बोलना नहीं चाहूंगी इसको, रिलीजियन का प्रचार रिलीजन, बिल्कुल। या बिकॉज देयर इज नो इक्विवेलेंट ऑफ रिलीजियन इन इंडियन लैंग्वेजेस। सो इसका आई वांटेड टू बिकम अ पास्टर and convert India, actually. Save India from hell. मतलब नरक में जाने से भारत को बचाना चाहती थी मैं जी। तो मतलब आत्माओं को नष्ट होने से बचाना था, क्योंकि यीशु मसीह आए उसी के लिए। तो मुझे इंडिया को ये बताना था कि जीसस इज द ओनली वे टू सैल्वेशन। तो 4.5 साल लगे मुझे मेरे डिग्री कंप्लीट करने में। और मुझे क्रिश्चियनिटी के जड़ तक जाना था जी। और निकली थी बनने ईसाई सिद्धांतों की प्रचारक, और बन गई उन्हीं सिद्धांतों की इंडिया के सर्वप्रथम क्रिटिक, आई मस्ट से। सो विश्वास मेरा चूर चूर हो गया और बहुत कुछ सीखने को मिली। बट या तो आज मैं अगर जी आज मैं अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे इतने
बोल्डली खड़े होकर अगर मैं क्रिटिसाइज कर पा रही हूँ, क्रिटिक कर पा रही हूँ, सिद्धांतों की हो या प्रैक्टिस की हो या उनके लिटरेचर की हो, सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन इन दैट बैकग्राउंड। अगर इतनी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं होती तो आई कैन नॉट कम ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। आज मुझे आप बोलिए हिंदुइज्म के बारे में कुछ कहने के लिए, आई कैन नॉट टॉक विद दिस कॉन्फिडेंस बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग, और मन में मुझे पता है कि आई डोंट नो अबाउट इट। So unless and until I'm confident about some subject, I cannot talk about it. जी। इसलिए तो मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात नहीं करती हूँ, सिर्फ इसके बारे में बात करती जी, हूँ जी, पब्लिक जी। प्लेटफॉर्म पे। तो आपके ज़हन में कौन-सा क्वेश्चन ट्रिगर किया पहली दफ़ा जब आपको लगा कि ये सब कुछ फ़ेक है, ये सब कुछ बनाया गया है खुद से और ये इनका जो प्रचार हो रहा है वो भी एक तरीके का एक फ़ेक नैरेटिव बन रहा है इंडिया में। तो आपको कौन-सी चीज़ पहले सबसे ट्रिगर की आपके माइंड में? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हैं या क्रिश्चियनिटी के बारे में? क्रिश्चियनिटी और इंडिया बोथ। अगर पहले आप क्रिश्चियनिटी के अल- बारे में बता। अल- ठीक है, मैं एक एक करके आंसर करती हूँ। सो मैं उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि सेमिनरी का मतलब है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहां से क्रिश्चियन स्टडीज की डिग्रीज हासिल किए जा सकते हैं। जी। और वेस्ट के सभी थियोलॉजियंस, क्रिश्चियन प्रीस्ट सेमिनरीज में मतलब उनकी तैयारी सेमिनरी में होती है। सो आज के सभी बड़े बड़े नामी यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल यूनिवर्सिटीज, इन सब की स्थापना सेमिनरीज के उद्देश्य से किया गया था। मतलब पहले जी। ये सब क्रिश्चियन स्टडीज के डिग्रीज देने वाले यूनिवर्सिटीज के तौर पे स्थापित किए गए थे। बाद में बाकी सेक्युलर स्टडीज उनमें इंट्रोड्यूस किया गया। और मेरा स्टडी है अपोलोजेटिक्स। जी। अपोलोजेटिक्स मतलब ईसाई थियोलॉजी सिद्धांत की मतलब ईसाई थियोलॉजिकल फील्ड में एक ऐसी शाखा है जिससे ईसाई धर्म को क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनकी तैयारी वहां पे होती है। जी। सो अपोलोजेटिक्स इज बेसिकली डिफेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। जी। तो ये था मेरा स्टडी। अमरिंदर जी, आपने ये भी पूछा है कि किस मोड पे मुझे ऐसे मेरे मन में ऐसे सवाल उठे कि मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़ दी। जी। सही पकड़ा है क्वेश्चन को? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। सो मेरे पहले ही सेमेस्टर में, मैं जैसे मैंने कहा कि 4.5 साल लगे मुझे कोर्स कंप्लीट करने में, तो पहला ही वहां पे सेमिनरी का एजुकेशन मतलब सब एजुकेशन सेमेस्टर्स के तौर पे डिवाइड किया जाता है। तो पहले ही सेमेस्टर में ईच सेमेस्टर वाज फॉर 3 मंथ्स। मेरे सेमेस्टर साल में 4 सेमेस्टर्स थे एंड क्योंकि मैं फुल टाइम स्टूडेंट थी, मैं चारों सेमेस्टर्स अटेंड पे कोर्सेज किया हुआ था, कोई ब्रेक नहीं लिया साल में। तो इन माय वेरी फर्स्ट सेमेस्टर मैंने जिस कोर्स को लिया था उसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट स्टडीज। जैसे क्रिश्चियनिटी उनके बाइबल में न्यू टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट है, तो दिस वाज द ओल्ड टेस्टामेंट स्टडीज। मुझे शुरू से ही ओल्ड टेस्टामेंट का बहुत ही ओल्ड टेस्टामेंट में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि हम मतलब पूरे मानव जाति की शुरुआत ओल्ड टेस्टामेंट में हुई। जी। तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखती थी और आई वॉन्टेड टू नो वेयर वी ऑल केम फ्रॉम। ये इंडिया में जितने सारे अलग अलग भाषाएं हैं, सो आई वॉज लुकिंग फॉर आंसर्स वेरी बैडली एंड मैं ओल्ड टेस्टामेंट के आगे जा ही नहीं पाई बिकॉज आई वॉज अ क्रिश्चियन, आई कैन नॉट लुक एट एनी अदर लिटरेचर। तो ओल्ड टेस्टामेंट स्टडीज मेरा सबसे पहला कोर्स था, जिसमें there is also information about how the Bible was made. कुछ brief, very brief. So this textbook was written by a theologian, मतलब a defender of Christianity, जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता हो, थियोलॉजियन जिसको बोलते हैं। सो थियोलॉजियन ने इस टेक्स्ट बुक को लिखा था और उस टेक्स्ट बुक में मैं पढ़ रही थी कि Bible has problems, errors.
बाइबल में एरर्स है, लेकिन इन एरर्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है जी। बट मेरा ध्यान सिर्फ बाइबल में एरर्स है यहां तक ही रुक गया। मैं उसके आगे जा नहीं पाई क्योंकि मेरा समझ 25 साल की क्रिश्चियन थी मैं तब। सो आई वाज अ क्रिश्चियन फॉर 25 years। जी। सो विद दैट काइंड ऑफ क्रिश्चियन बिलीफ, जब मैं पढ़ रही थी कि बाइबल में एरर्स है और मेरा ये मानना था कि बाइबल कैन नॉट हैव एनी एरर्स बिकॉज इट वाज द वर्ड ऑफ गॉड। जी। गॉड ने खुद उस वर्ड को जैसे कि लिखा था, डिक्टेट किया था और किसी और ने लिखा था। इट कैन नॉट हैव एनी एरर्स, इट्स अ डिवाइन बुक, राइट? तो जी। यहाँ पे थियोलॉजियन हु इज प्रमोटिंग क्रिश्चियन रिलीजन एंड हु इज टीचिंग मी टू डिफेंड क्रिश्चियनिटी, वो उसने लिखा कि बाइबल हैज एरर्स। बट यहीं से शुरू हुआ मेरा क्वेश्चनिंग का जर्नी। दिस इज वेयर आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। और बाद में जैसे जैसे मैंने कोर्सेस लिया अपोलोजेटिक्स में, चर्च हिस्ट्री पढ़ा और सो मेनी डॉक्ट्रिन्स, सिद्धांत, एक एक सिद्धांत की स्थापना कैसे हुई, उसका बर्थ कैसे हुआ, ये सब जब मैं पढ़ना शुरू कर दी तो एक एक करके क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते गए और क्वेश्चंस पूछती गई। और एक बात भी मैं बता दूं, एज अ क्रिश्चियन यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी, तो ये सिखाया जाता है। बट अपोलोजेटिक्स कोर्स में जाके सबसे पहले मैंने ये सीखा कि इट इज ओके टू क्वेश्चन। सवाल पूछना गलत नहीं है। सवाल पूछने पर गॉड तुमको नरक में नहीं जलाएगा, नहीं डालेगा। ये मेरी समझ में आई। जब ये बात मेरे सामने आई तो मैं खुल के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दी, मतलब अपने आप से। I started questioning, I started doubting, and जब अब हम क्वेश्चंस पूछेंगे तभी आंसर ढूंढने निकलेंगे, है ना? जी। जी। So I started asking questions, I started doubting, and I went looking for answers, and here I am today. ओके। तो आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि कैसे आपके दिमाग में ट्रिगर किया। तो आप ये भी बताएं कि वो इंडिया में जो हार्वेस्टिंग, जो सॉयल हार्वेस्टिंग करते हैं, एक कन्वर्जन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है क्रिश्चियनिटी में? जैसे हम इंडियन रिलीजन की बात करते हैं तो हमें ऐसा होता है कि हर बेस्ड ऑन कर्मा, कि कोई कन्वर्ट होना चाहे हो, नहीं होना चाहे ना हो। और कन्वर्जन का भी आप इतना पीक देख सकते हैं कि एक चाइनीज बंदा जो कि यूएस का सिटीजन था, वो यीशु का मैसेज देने के लिए इंडिया में आता है। और इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, स्पेशली जो अंडमान निकोबार, अंडमान में तो आप जा सकते हैं, निकोबार में आप नहीं जा सकते। वहाँ पे जो कुछ आइसोलेट आइलैंड्स हैं, वो वहाँ पे जाता है। जो आदिमानव जैसे लोग रहते हैं वहाँ पर, उनका लोगों से कोई लेन देन नहीं है, उनकी लैंग्वेज कोई अपनी ही होगी, लेकिन वो एक बोट वाले को पैसा दे करके उस आइलैंड में एज अ जाता है मैसेज देने। मतलब कि मैं ये समझ रहा हूँ कि उसके माइंड में एक ऐसे लोगों को जंगलों में जाके, आइलैंड के जंगलों में जाकर मैसेज देना इतना इंपॉर्टेंट था। वो इस चक्कर में वो मर भी गया क्योंकि उन लोगों ने उसको मार दिया जो आइलैंड में रहते हैं। तो लेकिन ये जो स्पिरिट है मैसेज देने की, ये क्यों है इतनी ज्यादा क्रिश्चियनिटी में? So, Amrinder ji, there are many dynamics to this question. There could be many reasons. मैं दो तीन reasons बोलूंगी यहाँ पे। तो एक तो there is this theory in Christianity कि जितने जल्दी लोग मतलब दुनिया सारा क्रिश्चियनाइज हो जाए, उतनी जल्दी यीशु मसीह वापस आएंगे। ये जो सेकंड कमिंग के बारे में आपने सुना है ना? जी। जी। डिड यू कि दोबारा आ रहे हैं वो वापस, जीसस क्राइस्ट जो गए हुए हैं अभी हेवन में बैठे हुए हैं, तो वो वापस आएंगे व्हेन ही विल टेक एवरीबॉडी टू हेवन, ऑल मैनकाइंड टू हेवन, है ना? जी। जी। मतलब जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया है। तो कुछ एक a few sections of Christianity, ये नहीं बोल रही हूँ कि this is the belief across Christianity, there are a few sections, denominations in Christianity which believe कि जितने जल्दी कन्वर्जन्स हो जाए, जितनी जल्दी पूरी मानव जाति कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी में, उतनी जल्दी यीशु मसीह वापस आएंगे। तो one of the main purposes of the Christian, one of the main purposes नहीं, बस एक ही main purpose of Christianity, of being a Christian is
for Jesus to come back again and हम सब heaven चले जाएं. Okay. That's the only goal of a Christian life. जी जी. तो ऐसे गोल के साथ they want Jesus to come back soon. So Jesus अगर जल्दी वापस आना है तो सभी को कन्वर्ट करना है. तो this is one reason why they want to convert everybody. Okay. Then the other reason is ये जो evangelist है, मतलब जैसे मैंने कहा, मैं बोलूंगी different kind of evangelists, जो आपके दोस्त हैं, जो आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, कॉलीग है, क्लासमेट है, या पड़ोसी है जो आपको बताना चाहते हैं. These people truly believe. सच में ये लोग बिलीव करते हैं कि they are saved and Jesus Christ is the only way to salvation. ये हमको foolish लग सकता है, but they are serious about it. Yes. And I actually pity them. So I can't call them fools. They are just emotional, sentimental believers, blind believers. So these people really think that you are going to hell because you are not believing in Jesus Christ, and they want to save you. They genuinely want to save you. इसलिए वो they share that message with you. और there are other ways, other reasons कि चर्च में उनको प्रेशर किया जाता है. Each one bring one. तो आप अपने क्लासमेट्स को लेके आओ, अपने स्कूलों में भी बच्चे आजकल they try to evangelize their Hindu friends. बिल्कुल. So during festivals especially, जब for example हिंदू 7th क्लास का बच्चा या 6th क्लास का बच्चा अगर अपने क्लास में जाके शेयर करता है कि इस साल हम दिवाली पे इतने हजार के पटाखे लेके आ रहे हैं मेरे पापा, तो अगर वो ग्रुप में अगर कोई क्रिश्चियन बच्चा है, तो I won't be surprised if that Christian बच्चा comes and tells the Hindu बच्चा कि ऐसा पटाखे फोड़ना नहीं चाहिए, this is demonic, तुमको दिवाली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, मेरे साथ तुम चर्च में आओ, इस साल मेरे चर्च में दिवाली पे we are doing a nice event. तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है उनका. हिंदू फेस्टिवल्स पे they do Christian events in churches. Churches do events in the church. Why? Because ये जो बच्चे हैं, क्रिश्चियन बच्चे हैं, they get attracted to these Hindu festivals. जी. क्योंकि churches don't want those kids, Christian kids, to go to their Hindu friends' homes. They organize these events in church. तो ये हिंदू बच्चे को ये क्रिश्चियन बच्चा बोलता है कि नहीं पटाखे फोड़ना is demonic, satanic, तुम वो नहीं करना है तुमको, इसके बदले में तुम हमारे चर्च में आओ, बहुत सारे खूब फन एक्टिविटीज होने जा रहे हैं. So this is also one kind of evangelism, है ना? तो मैं क्या बोल रही हूँ कि they truly believe कि मेरा हिंदू भाई जो है, बहन जो है, उसकी आत्मा नष्ट हो रही है, तो मुझे इसकी आत्मा को सेव करके हेवन लेके जाना है. So this is another reason why they want to convert you. जी बिल्कुल सही कहा आपने. मेरा भी जो एक दोस्त है जो मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो भी इतना ज़्यादा इमोशनली मोटिवेटेड है कि मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे माता पिता कैसे, कि मतलब कि वो तो क्रिश्चियन नहीं थे, तो वो कहता कि वो भी हेल में ही जाएंगे, दादा दादी. अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने कहा कि जो बच्चे होते हैं जिनका तो अभी जन्म ही हुआ ही है, और उनके बारे में क्या, अगर उनकी इस दुनिया में आए तो वो भी एक सिन के साथ ही आए हैं, तो उनका एक पूरा एडम ईव और एप्पल और सिन की एक उनके पास स्टोरी है. अगर आप उस स्टोरी में थोड़ा सा हमें बता दें, और वो क्यों इतना ज्यादा उस स्टोरी को बिलीव करते हैं. तो ये जो सिन की शुरुआत, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ सिन, इज बॉर्न इन सिन का जो कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल सिन बोलते हैं उसको क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में. तो पैदाशी पापी, जन्म पापी, जन्म पाप जिसको बोलते हैं. सो दिस जन्म पाप का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था गार्डन ऑफ ईडन में. सृष्टि की शुरुआत में जब एडम एंड ईव को गॉड ने बनाया था,
एडम को मिट्टी से बनाया और एडम के एक बोन से ईव को बनाया था। तो इसके बाद उनको गार्डन में रहने दिया गॉड, और गार्डन में एक पेड़ लगाया जिसपे कुछ एक फल उगता था। तो गॉड ने कहा गार्डन के सभी पेड़ पौधों से फल तुम खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ की तरफ नजर भी मत उठा के देखना, इसको खाना भी मत। ऐसा उसने गॉड ने कहा। लेकिन एक दिन सांप आता है। कहा जाता है कि सांप सेटन था। तो सांप आता है और ईव को उकसाता है, बोलता है कि तुम फल खाओ, गॉड ने तुमसे झूठ बोला, ऐसा नहीं कि तुम इस फल खाने से मर जाओगे। गॉड ने कहा कि इस फल को खाने से तुम मर जाओगे। तो सांप आके बोलता है, सेटन आके बोलता है कि कोई मरोगे नहीं, गॉड ने तुमसे झूठ बोला है, बस इसको खा के देखो। तो जब ईव टेम्प्ट होके खा जाती है, फिर वो एडम को देती है। यहीं से शुरुआत हुई पाप। तो एडम एंड ईव के बाद जितने भी लोग पैदा हुए वो सब पापी है। वी आर ऑल सिनर्स, वी आर ऑल दी क्या बोलते हैं, प्रोजेनिटर्स, मतलब वंश है, एडम के वंश है हम। तो हम सब पापी हैं। और इस पाप को हम अपने प्रायश्चित करके हम धो नहीं सकते, बिकॉज वी आर इनहेरेंटली इविल। आवर सैक्रिफाइस, हम चाहे कितना भी प्रायश्चित करने की कोशिश करें, वो भी पापी हृदय से ही उसका प्रायश्चित करेंगे, है ना, बिकॉज वी आर पापीज जी। तो इन पापों को धोने के लिए कौन आया है? यीशु मसीह। So this is the whole concept of Christianity. क्योंकि हम इतने immoral है, इतने inherently evil है कि हम अपना प्रायश्चित खुद करने लायक भी नहीं है। ऐसे प्रायश्चित भगवान को, गॉड को भी मंजूर नहीं है जी। तो इसलिए वो अपने लोगों के पापों की प्रायश्चित करने वो खुद यीशु मसीह बन के वापस धरती पर आया। So this is the whole concept of Christianity. Unless and until you believe in this sacrifice, which is Jesus Christ, तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे और हम we cannot go to heaven. Eternal life नहीं रहेगा. So that is the concept of Christianity. So ये तो एक उनका belief system ही होगा ना, एक बुक में लिखा है तो आप उसको believe कर रहे हो बस. Yes. True. There is no evidence to this. किसी ने देखा नहीं है, हेवन को देखा नहीं है, हेल में किसी ने देखा, हेल को देखा नहीं है. There is no evidence to this. There is no empirical evidence, physical evidence, कुछ भी नहीं है इसके. कुछ भी नहीं. एक बुक में लिखा गया है, बस उसको ब्लाइंड बिलीव करो. अच्छा, एक और क्रिश्चियनिटी के बारे में बड़ी फेमस बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये होली स्पिरिट और जीसस लव के कारण पूरी दुनिया में फैला है. इसमें क्या सच्चाई है? So, अमरिंदर जी फर्स्ट सेंचुरी में कुछ एक डजन या 20-30 फॉलोअर्स होंगे मेसाया के जी. उस वक्त इन द फर्स्ट सेंचुरी दे वर नॉट कॉल्ड क्रिश्चियंस, दे वर मेसाया फॉलोअर्स. मतलब 100 साल लग गए थे इन लोगों को क्रिश्चियंस बोलने में. सो दे वर नॉट कॉल्ड क्रिश्चियंस, दे वर सिंपली मेसाया फॉलोअर्स. मतलब ये जुडाइज्म, जूस का जो रिलीजन है यहूदियों का, तो यहूदी धर्म से ही निकला हुआ था, एक छोटा सा सेक्ट है. तो इन द फर्स्ट 3 सेंचुरीज 1 डजन फॉलोअर्स से ये 3 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गया था. ओके. सो हाउ डू यू थिंक इट बिकेम दैट? आई विल कम टू दैट इन अ बिट. फिर बाय द एंड ऑफ 4th सेंचुरी 30 मिलियन फॉलोअर्स बन गए थे. okay. मतलब आधी रोमन एम्पायर. एंड आज किसी भी एक क्रिश्चियन को पकड़ के आप पूछिए कि उनकी हाउ डिड द रिलीजन ग्रो सो फास्ट, यही बोलेंगे कि इट वाज बिकॉज द रिलीजन इज द ओनली ट्रू रिलीजन एंड जीसस क्राइस्ट इज द ओनली ट्रू गॉड, द मोस्ट पावरफुल गॉड, और होली स्पिरिट इज द मोस्ट पावरफुल स्पिरिट God. But we know, और इतिहास इसकी साक्षी है कि
we know why it succeeded. सबसे पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट्स ही कुछ ऐसे आ गए थे, हिस्टोरिकल माहौल ही ऐसा कुछ बन गया था कि एक नया धर्म को जन्म देना, नया धर्म को इन्वेंट करना और उसकी प्रचार करना जरूरी हो गया था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस इन रोमन एम्पायर. दैट इज वन रीजन. और जब उसको स्टेट की अप्रूवल मिल गई थी, मतलब एम्पायर की अप्रूवल मिल गई थी, ऑफिशियल रिलीजन बन गया था, तब तो उसको कोई रोक नहीं सकता था. बिल्कुल. राइट. एनी मूवमेंट टुडे इफ इट हैज द गवर्नमेंट अप्रूवल एंड गवर्नमेंट बैकिंग, फंडिंग, वो मूवमेंट सक्सीड नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है. क्रिश्चियनिटी, द सेम थिंग हैपेंड टू क्रिश्चियनिटी. तो रोमन एम्पायर में बात ही कुछ ऐसी हो गई थी, माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था कि इट वाज गिवन स्टेट अप्रूवल, और स्टेट अप्रूवल मिलने के बाद उसको कोई रोक नहीं पाया. दैट इज वन रीजन. सेकेंड रीजन इज देयर स्ट्रैटेजी. बट उससे भी पहले और इंपॉर्टेंट रीजन है देयर टेरर, द वे दे स्प्रेड टेरर, कि तुम एक्सेप्ट करो या मरो. ओके. या तो जीसस क्राइस्ट को तुम मानो या मरो हमारे हाथ. और वो मरना भी इतना टॉर्चर के बाद मारते थे ताकि बाकी लोग देख के दे कन्वर्ट ऑटोमेटिकली. पब्लिकली उनको मारा जाता था जी, टॉर्चर करके. देयर आर इवन इवेंट्स वेयर जिंदा इंसान को, मतलब उनका चमड़ा छीला गया हो, जिंदा इंसान, and then that is how they killed. That is the level of torture they gave. Very cruel, very cruel. So that is the second reason. The third reason, because why Christianity succeeded and still succeeds today in all the countries it goes to, is its powerful strategy, जो 2000 साल पुराना है. जी, तो मैं फाइव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी जो आज तक यूज में है उसको बस ब्रीफली बोलूंगी. नंबर वन इज क्रिश्चियनिटी जरूरत को पैदा करती है, ना कि जरूरत को पूरा करती है. बट क्रिश्चियनिटी क्रिएट्स द नीड, जो हम भी नहीं जानते हैं कि हम में है. There is no need in us, but Christianity creates it, and then it comes back and says, "Here we are the only I am the only solution." जिस तरह से salvation की needs नहीं थी हम में. We didn't even, human beings did not know that they needed salvation. पहले उसको create किया, उस need को create किया, उसके बाद में बोला कि I am the solution. Christianity is the only solution. So it creates the need. It doesn't just fulfill the need, existing need. मतलब जरूरत को create करती है, फिर उसको solve करने की claim करती है. The second strategy is Christianity हमेशा grass roots पे start होती है. It never goes and starts preaching the elite. रिच पीपल या एलिट को कभी भी वो, इवन इन हिस्ट्री रोमन एम्पायर में राजाओं को कभी कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की. क्रिश्चियनिटी फर्स्ट फाउंड फॉलोअर्स अमंग द फिशरमैन. सो हाई क्लास एजुकेटेड क्लास में जाती ही नहीं. मुझे एक गांधी जी की एक कोटेशन याद आती है. उन्होंने एक क्रिश्चियन मिशनरी से पूछा कि अगर आप लोग मानते हैं कि सैल्वेशन इज ओनली थ्रू क्रिश्चियनिटी, ओनली थ्रू जीसस, आप लोग मुझसे शुरू क्यों नहीं करते हो? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने दुनिया देखी है, मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, आप लोग हमें क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो? जाके उन अनपढ़ गवारों को क्यों कन्वर्ट कर रहे हो जो आपकी भाषा भी नहीं समझते हैं, ना आपकी मैसेज समझते हैं. और वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसलिए नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं कि आपके मैसेज में दम है. वो लोग इसलिए कन्वर्ट हो रहे हैं कि आपके जो चावल की बोरी आप दे के जा रहे हो उसकी वजह से वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं जी. तो ऐसे में तो सैल्वेशन नहीं मिलती है क्योंकि उनकी मोटिव ही खराब है.
तो आप लोग हम लोगों से क्यों नहीं शुरू करती हो? सो क्रिश्चियनिटी डजंट start with educated or elite people. Christianity starts getting followers at the grassroots level. जो लोग बहुत ही vulnerable हैं, जिनके जरूरतें ज्यादा हैं, जरूरतमंदों से शुरू होती है. So it starts at the grassroots level. Back in history और आज तक भी वही हो रहा है. हम देख सकते हैं tribals get converted, poor people get converted, fishermen especially. फिशरमैन, यस, या फिशरमैन. उनको ये बोला जाता है कि जीसस क्राइस्ट खास आपके लिए आए, बिकॉज इन द बाइबल ही वर्क्स विद फिशरमैन. देन द थर्ड strategy is it eliminates competition. Okay. आपने कहा था कि क्यों इतना किसी हिंदू को जब या सिख को कन्वर्ट करते हैं तो क्यों उनको उनके पुरानी संस्कारों को छोड़ना क्यों पड़ता है जी. सो द आंसर इज क्रिश्चियनिटी डजंट लाइक कंपटीशन. इट इज ऑल और नथिंग. या तो पूरा दे दो या कुछ भी नहीं चाहिए. सो क्रिश्चियनिटी expects from the converted person everything of his. तुम अपना पुराना छोड़ के, दरवाजे पे छोड़ के अंदर आओ. अपना पुराना अपने साथ नहीं लेके आना है. सो इट इज ऑल और नथिंग. हिस्ट्री में भी देखिए आप, पेगन्स को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता था कि आप लोग अपना कुछ भी लेके नहीं आ सकते हो. बट इन पेगनिज्म, इफ यू सी इन एंशिएंट पेगनिज्म, अगर एक बंदा लेट्स से इजिप्शियन गॉडेस एथीना को पूजता था, जरूरी नहीं कि इफ ही वांट्स टू प्रे टू से काली या शिवा या ज़ूस, अगर इसको कुछ नया भगवान उसके घर के अंदर लेके आना है तो उसको जरूरत नहीं है कि एथीना को बाहर फेंक दे. एथीना के साथ साथ ही कैन पुट काली का मूर्ति भी रख सकता है या शिवा का मूर्ति भी रख सकता है. सो दैट assimilation is tolerated in paganism, but Christianity doesn't tolerate assimilation, doesn't tolerate competition. इसको competition चाहिए नहीं चाहिए. So it's all or nothing, इसको हम बोलते हैं. So that's the third strategy. Okay. The fourth is घर में या कम्युनिटी में किसी एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर को पहले कन्वर्ट करता है. जैसे ट्राइबल्स में ट्राइबल के मुखिया को कन्वर्ट करते हैं पहले. और आजकल इंडिया में देखा गया तो सबसे पहले लेडी ऑफ द हाउस, घर के स्त्री को पकड़ते हैं वो लोग. व्हाई? बिकॉज रिलीजियन and religious sanskar are the responsibility of the woman. Domestic hai, religion is domestic, so domestic work is the responsibility of the woman. और women होती भी इतनी मतलब women needs emotional भी नहीं बोलूंगी, she is emotionally strong. वैसे तो सारे women मुझे कंप्लेंट करेंगे फिर अगर ये बात मैं बोलूंगी तो. जी जी. So I don't agree that she is much more emotional than man. Emotions तो दोनों में बराबर की होती है. What I'm trying to say here is, घर में अगर एक अल्कोहलिक हस्बैंड है या ड्रग एडिक्ट बच्चा है, तो जितना वुमेन पे ले लेती है भार कि कैसे भी मुझे हस्बैंड को अल्कोहलिज्म से बाहर निकाल के लेके आना है, या ड्रग एडिक्ट ड्रग से मेरे बच्चे को बचाना है, जितना भार औरत लेती है उससे थोड़ा कम मर्द लेता है घर में. तो माँ को होती है कि आई हैव टू सेव माय फैमिली. सो द सेविंग द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडिया में प्रिडोमिनेटली इन आवर कल्चर इज ऑन द वुमेन. और टू ब्रिंग फूड, टू पुट फूड ऑन द टेबल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने उस पर थोप दिया है, बट शी टेक्स इट ऑन हरसेल्फ. She takes it on herself कि I have to put food on the table for my family. I have to save my husband from alcoholism. I have to save my son from
drug, or I have to save my daughter, I have to give good education to my daughter. तो जी ये सब आर औरत का burden. She has हम्म taken it upon himself. हम्म तो ये सब उसको वो कर नहीं पाती है. A lot of times she doesn't know how to do them. She wants a solution, but she doesn't know how to do them. So she'll expect a miraculous solution. ओ यस उसको किसी ना किसी तरह से miraculously वो हो जाए, बस हो जाए. So these miracles are sold by the pastors. So they catch hold of an influential member. Influential का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही अमीर हो या influence हो, ये नहीं. Somebody who can influence the rest of the community or rest of the family. So Christianity catches hold of the tribal mukhya या स्त्री of the house. जी Back then, male member in Roman Empire, male member was the influential member in the group. तो पहले मेल्स को उन्होंने कन्वर्ट किया, फिर बाद में the whole family gets converted. So they have their strategy, very fixed strategy. The fifth and most important strategy is it exploits human need. पहले मैंने कहा कि नीड को क्रिएट किया हुआ है. कौन सा नीड? salvation. You need salvation. Yeah, you need salvation, and only we can provide that salvation through Jesus. जी But the fifth point that I'm making is it exploits the need. किसी में नीड देख लिया, जिस तरह से हमारे पड़ोसी हमारा पड़ोसी जो था वो तमिल क्रिश्चियन के बारे में बात कर रही थी. That person, he saw that we had the situation at home, and we had a need for a solution, and then he offered that solution by saying that okay, here is Christianity gives you that solution. So it exploits that need. So and it takes control. दूसरी बात, Christianity takes control. If you look at the political big picture in India, it takes control of crucial industries, schools, हमारे hospitals, और धीरे धीरे करके हमारे entertainment को ले रहे हैं, मतलब अपने कंट्रोल में ले रहे हैं. They are taking hold of employment exchanges, मतलब recruitment agencies. आज आप जाके देखिए, कोई भी मतलब ये लेबरर्स, होम हाउसकीपर्स या केयर टेकर्स, एल्डरली केयर, नैनीज, नर्सेस, इन सब की जो रिक्रूट करते हैं, ऑल दिस एजेंसीज आर रन बाय क्रिश्चियंस. ओके. और अगर किसी मामूली इंसान को जाके वहां पे रजिस्टर करना होता है, अगर वो क्रिश्चियन नहीं है, तो पहले बोलते हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ पहले, उसके बाद तुम्हारा नाम रजिस्टर में जाएगा, उसके बाद तुम्हें काम ढूंढेंगे. जी. So they're slowly taking over these employment agencies also. So these are the few strategies, the 5 most important strategies of Christianity, why it succeeded in India, succeeded in the world and especially in India now. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एस्टर जी की ये कैसे होता है कि जो इवेंजलिस्ट हैं जो इंडिया में हैं, जो मैंने देखे हैं कि वो बहुत एक बड़ी स्टेज लगा लेते हैं और पीछे म्यूजिक चलता है और नाचने गाने वाले होते हैं. एक तरफ कहते हैं कि ये इस बंदे का कैंसर था, हमने अभी प्रेयर किया तो ठीक हो गया. फिर एक लड़की का तो एक केस आया था, वो तो बड़ा फेमस हो गया था कि उन्होंने एक लड़की मरी हुई जिसको उन्होंने कहा था उसको हमने जिंदा कर दिया, लेकिन वो गलत था. वो तो प्रूफ भी हो गया है अब. तो ऐसे बहुत से केस आते हैं. एक बंदा कह रहा है कि मैं तो चल नहीं सकता था, ये अभी प्रेयर हुई और अभी, और वो देखने में इतना मुझे, मेरे लिए और मेरे जो दोस्त हैं वो अगर देखते हैं तो हमारे लिए तो एक फन सा लगता है. तो वो उनको ट्रेनिंग कहाँ से होती है और वो क्यों ट्रेनिंग दी जाती है उनको? इसमें ट्रेनिंग के कोई मतलब ट्रेनिंग उनको दी जाती है जो वहां पे आके ड्रामा करें. मतलब ये जो रेंगते हुए नजर आते हैं आपको जमीन पर, इन लोगों की ट्रेनिंग होती है. बट जो चला रहा है, जो सर्कस चला रहा है पास्टर, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है. वो नेचुरल है, वो है ही नेचुरल चीट, वो नेचुरल एक्टर है, नेचुरल ड्रामा आर्टिस्ट है. ही इज नेचुरल, दैट्स अ नेचुरल टैलेंट. Now I have to tell you that not all Christians believe in those miracles. There are certain sects of Christians who believe in that kind of miracles. And I should also say that not all pastors are engaged in this healing thing. Only those pastors,
हाँ, ये चंगाई में पूरे पास्टर्स इस ड्रामे में शामिल नहीं है। कई सारे पास्टर इन चंगाई वाले पास्टर्स को गाली भी देते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है। क्या क्या बना दिया इन लोगों ने हमारे धर्म को, तो ऐसा करके भी गाली देते हैं। बट दिस पर्टिकुलर सेलेक्टिव चंगाई वाले पास्टर्स जो है, दिस पीपल आर सबसे बड़े चीट्स कहा जा सकता है। दे आर द बिगेस्ट चीट्स इन क्रिश्चियनिटी। ये तो पता चल गया है अब कि दैट इज ऑल ड्रामा। एंड पहले उसकी बहुत रिहर्सल होती है, उनके क्लोज्ड चर्च के प्रीमाइसेस में रिहर्सल होती है एक एक की, बिकॉज उनको पैसा मिलता है। यू सी अगेन, जरूरत को किस तरह से ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं जी। यहाँ पे दो तरह की जरूरतें हैं। एक तो जो देख रहा है कि मिरेकल्स की जरूरत है उसकी जिंदगी में, एक वो जो ड्रामा कर रहा है, ड्रामे में शामिल है जी, एक्टर है, उसको पैसे की जरूरत है। तो ये जानते हुए कि ये इस पैसे से, इस ड्रामे की वजह से कई लोगों की चीटिंग हो रही है, तब भी वो जाके वो ड्रामे में शामिल होता है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। तो किस तरह से पास्टर्स मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, देखिए। सो इट्स ऑल ड्रामा, इट्स ऑल ये चीटिंग पैसे बनाने का एक माध्यम है। जल्दी, क्विक, एफर्टलेस, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, ऐसा पैसा। नाउ evangelists, pastors who do not believe in that changai also impact believers सिर्फ अपने बातों के टैलेंट से। जी, दे कैन टॉक नाइसली, अच्छे अच्छे मैसेजेस प्रेजेंट कर सकते हैं। सच पीपल ऑल्सो कैन विन लॉट ऑफ फॉलोअर्स। तो जिस तरह से, जैसे मैं चर्च में जाती थी, जितने सारे चर्च में गई, वहां पे चंगाई का इतना नहीं होता था, बट उनके मैसेज ही बहुत पावरफुल रहता था। Now I'll give you an example of public speakers, motivational speakers. Motivational speakers गॉड का नाम नहीं लाते हैं, बट फिर भी कितने सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उनके बातों से। जी। So a pastor is just a motivational speaker, बस उसमें कहीं ना कहीं बाइबल को ऐड कर देता है। So motivational speaker may be trained, may not be trained, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। If he is naturally talented, he can bring followers. So दो तरह के इवेंजलिस्ट होते हैं। एक तो करियर इवेंजलिस्ट, जिसका पे चेक मतलब सैलरी इवेंजलिज्म से आता है, जो करियर वो ट्रेनिंग करके चर्च में आता है। दूसरा तरह का इवेंजलिस्ट है ले इवेंजलिस्ट। सो ले इवेंजलिस्ट इज मोर डेंजरस, नॉट द करियर इवेंजलिस्ट। ले इवेंजलिस्ट कुड बी योर फ्रेंड, योर क्लासमेट, वो आपके कॉलीग हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, बॉस हो सकता है, और ही कुड बी योर वेंडर। कोई भी कहीं भी सुपरमार्केट में जाते हुए यू माइट मीट हिम, सडनली ही माइट सी दैट आपसे कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देता है, और थोड़ी देर में जब अगर आप उसको अपने सिचुएशन की एक छोटी सी भनक भी दें, तो he will start evangelizing you. These are lay evangelists, जो बाकी काम करते हुए evangelism भी करते हैं। These are lay evangelists, and I say these are more dangerous because these people catch hold of us when we are not prepared. Okay. When we don't expect them to evangelize us. But in the case of a pastor, हम expected रहते हैं, विल बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि अच्छा ये आगे जाके ही टॉक टू मी अबाउट जीसस, तो मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, अपने जवाब के साथ रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा जी, अपने डिफेंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अ पास्टर यू आर मोर प्रिपेयर्ड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ ले इवेंजलिस्ट यू डोंट इवन नो दैट ही इज अ क्रिश्चियन, यू डोंट इवन नो दैट ही विल इवेंजलाइज यू। ऐसे में अगर वो सडनली अटैक करता है अपने मैसेज के साथ, you'll be defenseless. So that is why I call the lay evangelists are more dangerous than career evangelists.
सही। तो आपने 2 बार इस मनी का ज़िक्र किया, पैसे का ज़िक्र किया कि एक तो जो करियर वाले हैं, उनका अपना होता है, उनको सैलरीज़ मिलती हैं और जो एक्टिंग करते हैं वहाँ पर आकर चंगियाई सभा में, उनको जो नीडी लोग हैं, उनको भी पैसा दिया जाता है। तो अगर हम इस बात में आएँ कि वो जो पैसा दिया जाता है सैलरी के माध्यम से जहाँ के लोगों को एक्टिंग करने के लिए, तो वो पैसा आता कैसे है उन सारे चर्च में वो पैसा कैसे आता है? तो पैसा सर is a very important part of Christianity. जी, पैसा is inbuilt into the theology of Christianity. तो क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों में ही इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। जी, जैसे बाइबल में लिखा है कि हर बिलीवर को अपने मंथली इनकम से 10% चर्च को देना चाहिए। 10% ऑफ योर इनकम, चाहे आप 10 रुपए कमा रहे हो, 1 रुपया महीना आपको जाके चर्च में देना है। ओके, देन देर इज एवरी संडे दे मीट, राइट? लाखों में आते हैं चर्चेस में, कई कई चर्चेस में तो देर इन थाउजेंड्स एक्चुअली। तो overall church attendance is in millions across the world, right? So every Sunday the believer gives an offering. पहले 10 रुपया वॉज नॉर्मल, बाद में 100 रुपया वॉज नॉर्मल, आजकल 500 के नीचे कोई देता है तो हमारे बगल में जो खड़ा है वो मतलब एक डाउटफुली देखता है। तो आजकल 500 हैज बिकम अ नॉर्मल। तो महीने में अगर 4 फैमिलीज है, 4 मेंबर्स फ्रॉम 1 फैमिली, तो हफ्ते में 2000 आ गए एक फैमिली से। ऐसे हजारों फैमिलीज है एक चर्च में जाते हैं। सो दैट इज वन वे ऑफ वन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू टू द चर्च। एक तो टाइथ हो गया है, एक वीकली ऑफरिंग हो गया है जी। नाउ बिफोर द एफसीआरए चेंजेस, एफसीआरए लॉज के चेंजेस से पहले फंडिंग यूज्ड टू कम फ्रॉम आउटसाइड आल्सो, राइट? चर्च एक्टिविटीज अब्रॉड, यस। नाउ अब्रॉड पैसे कहां से आ रहे हैं उनको, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका जवाब है, एज वी नो क्रिश्चियनिटी इज अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन, है ना? तो चाहे उनका थियोलॉजी ले लीजिए, उनका एजुकेशन, जैसे सेमिनरीज मैंने कहा है, करिकुलम, होल करिकुलम्स आर डिजाइन्ड, तो उनकी ट्रेनिंग इज वेरी मेथोडोलॉजिकल। Just like that, even their funding is also very very methodical and very strategized. ये होता है कि there are organizations that are built only for pooling funds. So आप, let's say you are there, you start a funding organization for Christianity, okay? So आप registered हो, you are a registered organization which is licensed, which has the license to collect funds and dispense them. जी। तो आप क्या करोगे? You will tie up with local churches, बड़े बड़े चर्चेस, जहां पे आपको पता है कि लोग लाखों में आते हैं एवरी संडे और लाखों में देते हैं। So you will tie up with those churches and you will say that, okay, I am going to do a special fundraising in your church. साल में 2 बार हम आपके पास आएंगे और स्पेशल फंड-रेजिंग हम करेंगे। और ड्यूरिंग द स्पेशल फंड-रेजिंग 1-2 महीने पहले से ही उस चर्च में आने वाले बिलीवर्स को बोला जाता है कि फलाना ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है हमारे पास फंड रेज करने के लिए। तो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं ताकि ज्यादा दे सकें। सो क्या होता है ये फंड रेजिंग के पास? ड्यूरिंग द फंड रेजिंग चर्च में एक बड़ा सा प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाया जाता है और उस पे दिखाया जाता है कि कैसे राजस्थान के किसी कोने गांव में कैसे पानी नहीं है और आपकी पैसे से कैसे वहां पे पानी दिया जाएगा जी। या अफ्रीका में किसी एक गांव में लड़कियों को, मतलब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है,
कैसे आपके इन $2 $10 के फंडिंग के माध्यम से हम उनको एजुकेशन देने जा रहे हैं। तो ऐसे एक कहानी बनाते हैं, इमोशनल कहानी जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है, और ये बिलीवर जो सीधा साधा सा बंदा जो 1 आवर में $10 कमाता है, तो ऐसा बंदा बहुत ही इमोशनल है, सीधा साधा है, मतलब वो बिल्कुल सच में मानता है कि ये पैसा उसको अफ्रीका में जा रहा है बच्चों को एजुकेशन देने में, या उसका डॉलर जा रहा है राजस्थान में किसी कोने में जिनके पास पानी नहीं है उनको पानी देने में। So he truly believes that and he gives during that special fundraising. तो ऐसा इकट्ठा करता है this funding organization। तो इन लाखों डॉलरों का या लाखों पाउंड का क्या करता है फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन? It sends to the churches here in India जो छोटे छोटे दुकान लगा के बैठे हुए हैं, कन्वर्शन के दुकान यहाँ पे, ये लोग they approach this funding agency because this funding agency advertises itself through website, through internet. तो they approach this funding agency कि हम एक we are trying very hard to convert India को हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे मिनिस्ट्री के लिए इतने लाख रुपए चाहिए मुझे इस साल। ऐसे करके the funding agency believes it क्या, it is also hand in glove with the whole conversion thing। तो वो पैसे भेजता है। So this is one way of revenue, another way of revenue, bigger revenue comes through this, इसी माध्यम से bigger revenue आता है। But I think since FCRA lot has changed, but this was one way of getting। अभी ऐसा हो गया कि our churches are self-sustained, इनको बाहर की फंडिंग की जरूरत नहीं है। You see how big बड़े-बड़े politicians हो या celebrities, I mean actors, actresses कैसे convert हो रहे हैं, lot of industrialists convert, so they give। So the churches today are self-sustained। जी, ओके। जरूरत से ज्यादा पैसा है उनके पास अभी, मतलब बाहर से ना आते हुए भी। और आपको मैं इसमें एक मजे की बात बताता हूँ कि मैं एक लेडी को जानता हूँ, वो डॉल पर है, क्योंकि डॉल मतलब होता है कि जो लोग काम नहीं करते और उनको गवर्नमेंट उनके रहने के लिए पैसा देती है कि आप अपना मिनिमम अपना खर्चा चला सकें। उसने एक दिन मुझे प्राउडली बताया कि वो $100 इंडिया को भेजती है। आज से आई थिंक सो कि 4 साल पुरानी बात है ये, कि जो औरत खुद ही डॉल के ऊपर है, एक तरस के आधार पर जिंदगी बिता रही है, उसको भी देखो कैसे उन्होंने मोटिवेट कर रखा है कि वो भी $100 अपनी डॉल में से निकाल करके पैसा इंडिया भेज रही है। सो आपकी जो जैसे आपने बताया कि लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो वो बात सही लग रही है कि मुझे कि ऐसे होता है। और कन्वर्जन का यहाँ तक देखें कि जो मेरा यहाँ घर है वो क्लोज्ड है, फेंस लगी हुई है और डोर बाहर का भी हमारा इलेक्ट्रिकल है। तो मैं हैरान हो गया, मुझे 2 बार लेटर मिले कन्वर्जन के हैंड रिटन। मैंने सोचा कि किसी बंदे ने एक टाइम लगाया, एक तो होता ना प्रिंट निकाला, एक बार टाइप किया, प्रिंट करके सबको दे दिया। उन्होंने हैंड रिटन पूरा लेटर दिया मुझे। मैं इस वीडियो में एडिट करके लगाऊंगा, और दोनों बात बड़े बड़े पेज लिख कर भेजे। तो देखो ये भी एक स्पिरिट है कि कन्वर्जन करने की, और जैसे आपने बताया कि उनको होता है कि वो ट्रूली बिलीव करते हैं कि हम इनको नर्क में से जाने से बचा लें। एब्सोल्युटली, जी। बहुत तरस आता है ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों के विचार से। आई रियली फील बैड फॉर देम। जी 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 जी। तो जैसे एक और बड़ा सब्जेक्ट क्रिश्चियनिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है कि एक तो चाइल्ड अब्यूज, स्पेशली आई थिंक सो कैथोलिक्स में ज्यादा, वैसे औरों में भी होगा, और ये सेक्सुअल अब्यूज ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन चर्च उसको हमेशा दबाने की कोशिश करता है। आपका क्या सोचना है इसके? चर्च को तो दबाना ही पड़ेगा, है ना, बिकॉज द चर्च हैज टू सर्वाइव, द चर्च हैज टू लिव। तो लाख कोशिश करके भी ये लोग चर्च को जिंदा रखेंगे।
चर्च मतलब द एंटिटी, द ग्लोबल चर्च, क्रिश्चियनिटी को, जी, ईसाइयत को अगर जिंदा रखना है तो ऐसे अब्यूजर्स को तो दबाना ही पड़ेगा। So this is, see, Christianity is not just a religion today. It's politics, it's economics, you know, it's और जहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आ गया वहां पे तो लोग आर वेरी करप्टेड। जी, सो टू ईसाइयत को जिंदा रखने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। पास्ट में ये लोगों को मारते थे, टॉर्चर करके मारते थे, अब ये अब्यूज बाहर आने से दबा देते हैं। दे हैव द पावर अमरिंदर जी, दे हैव द पावर, दे हैव द मनी एंड दे हैव द मोटिव। तो इसको दबाएंगे ही। अगर नहीं दबाएंगे तो आज नहीं तो अगले 100 साल में क्रिश्चियनिटी तो खत्म हो ही जाएगी। वैसे भी हो जाएगी लेकिन जल्दी हो जाएगी। ओके, तो आप कैसे देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है जो वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत कम हो रही है मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि यहाँ लोग एथीस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं और उनका अच्छा खासा नंबर है सभी वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन आई थिंक सो कि उनका ज़्यादा जोर लग चुका है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करें। तो आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं क्रिश्चियनिटी का? ओके, मैंने एक रिसेंटली एक टॉक किया था, 2-3 जगह पे किया हुआ है। तो इन दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट कैसे वेस्टर्न कंट्रीज में किस वजह से एक्चुअली इट्स अ फुल प्रेजेंटेशन, हो सके तो हम एक बार फिर से करेंगे उसको, बट मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि यस, क्रिश्चियनिटी इज एंडिंग इन द वेस्ट, बट जैसे मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी डजंट डाई। क्रिश्चियनिटी मरेगा नहीं, मरने नहीं देंगे क्रिश्चियनिटी को, बट क्रिश्चियनिटी चेंजेस इट्स फॉर्म। आजकल जैसे सिख लोग व्हेन दे कन्वर्ट दे डोंट रिमूव देयर पगड़ी, yes, even do not change their name as well, exactly, they assimilate. Christianity assimilates, it syncretizes, syncretistic बन जाता है। So Christianity doesn't die, it just changes form. जैसे वायरस इवॉल्व होता है, वायरस म्यूटेट होता है, क्रिश्चियनिटी म्यूटेट्स। So because it's ending in the West, but the West does not want it to die, it's importing it to other countries, the global South. इसको बोलते हैं the global South. I mean India comes under global South. Global South जैसे पहले इसको बोलते थे the third world countries. I don't like that word much, but now they're calling it global South. So साउथ में उसको भेज रहे हैं। क्रिश्चियन इंडिया हैज बिकम अ डंप यार्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी, और इसकी वजह से और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है उनके मेथड्स, और ज्यादा फंड्स आर गेटिंग पम्प्ड इन, एंड दे आर अफ्रेड दैट अगर इसको ग्लोबल साउथ में नहीं भेजेंगे इसको, ये धीरे धीरे करके मर जाएगा। इसीलिए इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, लास्ट 10 इयर्स में बहुत ज्यादा हो गया है, और 5 इयर्स में तो और ही बहुत ज्यादा हो गया है। जी जी जी, लॉट ऑफ क्रिश्चियन एग्रेसिव कन्वर्जन्स एंड पॉलिटिक्स में दखल देना एंड क्राइंग फाउल की प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, तरह तरह के इनके तरीके हैं where they are trying to import it into India and make it the religion of India. कि अगर कोई बंदा जो कि इंडियन रिलीजन में है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको कैसे अवेयर रहना पड़ेगा उसके माइंड को कि अगर कोई इवेंजलिस्ट आता है, कहीं मार्केट में मिलता है, कोलीग है उसका, जहाँ उसका स्टूडेंट है, जहाँ टीचर है, तो उसको कैसे रोके, कैसे अपने दिमाग में ये चीज लेकर आए कि अब मुझे कन्वर्ट करने के लिए कोई मुझे पुश कर रहा है। Okay, think of it as a rape victim and a rapist, molester. Okay. Now, most of the rape cases are a sudden attack on the woman. उसको हम बाजू में रखते हैं. This rapist, this evangelist is not that dangerous. Okay. ये छोड़ा, he is like a molester. Evangelist is a molester. अपना
काम धीरे से शुरू करता है, धीरे से प्रोग्रेस करता है. जी. So will not compare him with the aggressive rapist. So think of him as a molester of your culture. Okay, molester of your religion, a molester of your heritage. Okay, now what do you do as a victim? What do you do when you know that the other person is going to molest you in some way? जी. अपना गार्ड अप करोगे, अपना डिफेंसेस को, यू विल कलेक्ट योर डिफेंसेस, गैदर अप योर डिफेंसेस, मेंटल, फिजिकल, हर चीज. जी. यहाँ पे और एक डिफेंस इज योर इंटेलेक्चुअल डिफेंस. ओके, इंटेलेक्चुअल डिफेंस को बढ़ाओ. दिस इज माय वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि खुद के इसके बारे में जानो, एजुकेट योरसेल्फ. जी. कि हमारे शास्त्रों में क्या है, व्हाट इज आवर हेरिटेज, व्हाट इज आवर हिस्ट्री, हम क्या थे, हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया. एवरीथिंग, नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हजारों किताबें पढ़ो एंड रिमेम्बर एवरीथिंग. बस एक 10 पॉइंट ले लो, हिस्ट्री से एक, कल्चर से एक, अपने शास्त्रों से एक, फिलॉसफी से एक. इतने अच्छे अच्छे फिलॉसफी दिए हुए हैं हमारे एंसेस्टर्स ने हमको. जी. गेट एक्वेंटेड विथ इट. कर्म के बारे में जानो, कर्म सिद्धांत के बारे में जानो. थोड़ी बहुत वेदांता देखो, एक दो पॉइंट्स ले लो उसमें से. सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर रिप्लाइंग टू देम व्हाई यू डोंट वांट जीसस. Don't go into the argument कि Jesus नहीं थे, Jesus was not a historical person. Doesn't matter. Even if Jesus is historical person, we don't need him. ये मेरा मानना है. हो सकता है maybe he was very pious, maybe he was, वैसे मैं नहीं मानती हूँ he was a historical person. But even if that Christian wants to know, say that Jesus is a historical person, हो सकता है इजराइल में कभी उनकी जरूरत थी, तो इट्स ओनली लिमिटेड टू द जूस. जी. भारत को या एज ए भारतीय, आई डोंट नीड जीसस, क्योंकि उनकी मैसेज इज मच मोर शैलो. खोखला है, उनकी मैसेज इज खोखला कंपेयर टू माय वेदांता, कंपेयर टू माय फिलॉसफी, माय सनातनी फिलॉसफी, माय सिखी फिलॉसफी. सो कंपेयर टू दैट, ये मुझे काफी है. This will get through my life. This will get through my karma, my dharma. I don't need Jesus. To be able to say that, इतना बोलने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो होमवर्क करना पड़ेगा. बिल्कुल. तो सिट डाउन, कई सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन, वीडियोस देखिए. पीपल आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग ऑल दैट एफर्ट, रिसर्च कर रहे हैं और अपना वर्क पब्लिश कर रहे हैं. देखो उनको, पॉइंट्स नोट करो, एक छोटी सी नोटबुक रखो अपने पास, एंड काउंटर देम इन द मार्केट प्लेस इटसेल्फ. और एक बात है अमरिंदर जी, आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट कि हमारे साथ जो हमारे आपके विसिनिटी में, आपके नेबरहुड में कोई भी एक हिंदू या सिख या इंडियन रिलीजियंस वाले अगर एक नीड में है, जरूरतमंद, इंडियन रिलीजन, इंडियन बिलीवर्स को, मतलब नॉन क्रिश्चियंस, उनके साथ खड़े रहो. मतलब जस्ट बी देयर विद देम. हो सके तो गो हेल्प देम फाइनेंशियली इफ यू कैन, या दे आर सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल, मतलब नीड इज सच अ थिंग कि चाहे नीड पूरा करो या ना करो, बट साइकोलॉजिकली खड़े हो जाओ उनके साथ, तो बहुत शक्ति मिलती है जरूरतमंद को. सो अपना एक इमोशनल सपोर्ट दो उसको. ये कहो कि भाई मैं हूं तुम्हारे साथ, बहन, हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे. जी. तो बोलने के लिए तो ही बोलो एटलीस्ट. सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम गेटिंग कन्वर्टेड जस्ट बाय बीइंग देयर फॉर द फेलो हिंदू और फेलो सिख, फेलो बुद्धिस्ट, कोई भी. जी. जी. सो या मैं मानती हूँ कि देयर इज अ लॉट दैट वी कैन डू. हमारे हाथों में है. किसी को अटैक करने की जरूरत नहीं है, किसी के सिद्धांतों को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू. डोंट डू दैट इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. उल्टा पड़ेगा वो.
वही बोलो जिसके ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो। जी जी तो बस दीज आर माय रिकमेंडेशंस। जी। तो एस धनराज जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही तफ़सील से बताया कि कैसे इवेंजलिस्ट आते हैं और कैसे इनका जो फंडिंग सिस्टम कैसे चलता है, और सबसे जो एंड में आपने अपना रिकमेंडेशन दिया और हमें कैसे बचना चाहिए, और जो आपने कहा कि हमें कुछ पॉइंट नोट करके रखने चाहिए अपने धर्म के ऊपर भी, और स्पेशली आप वेदांत और कर्म सिद्धांत की बात की। आई थिंक सो कि इट्स अ गुड मैसेज। और मैं आपका दी डायलॉग टाइम के मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अमरिंदर जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सभी थैंक यू। दर्शकों को मेरा नमस्कार।